اور کچھ آپ کو ٹیچنگ ٹیکنیکس آپ کو الفابیٹ اور لیٹر کے حوالے سے بتایا جائے گا. فونکس کا آپ کو ان کی ساؤنڈ وغیرہ بتائی جائے گی, کیونکہ ہمارا جو ہے مونٹیسری میں یہ ایجز جو آتی ہیں بچوں کی, دیز آر فرام کلاس پلے گروپ, نرسری, پریپ, اسپیشلی اس کو یہ بڑی کلاسز ہوتی ہیں, اور ایج ہوتی ہے فرام کلاس 3 to 6, ایج فرام 3 to 6 years. So starting the session, let me introduce you the word جو ہم یوز کرتے ہیں الفابیٹ یا لیٹر. اب یہاں آپ کو اب اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا what is the difference between alphabet and letters. Normally we consider کہ ABC A to Z alphabets بھی ہیں اور یہی letters بھی ہیں. No, but there is a difference between alphabet and the letter. ایسا ہے کہ جو الفابیٹ ہوتا ہے that is a group of letters, that is a group of letter of any language. کسی بھی لینگویج کے جو لیٹر کا گروپ, لیٹرز کا گروپ ہوتا ہے, حروف تہجی کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو آن دا ہول الفابیٹ کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان انگلش A to Z جب کمپلیٹ لکھا جائے گا A سے لے کے Z تک تو وہ الفابیٹ کہلائے گا. اسی طرح اردو میں الف تا یا حروف تہجی اسی صورت میں کہلائیں گے جب آپ اس کو الف تا یا لکھیں گے, الف تا یہ لکھیں گے, وہ الفابیٹ ہوتا ہے. یعنی گروپ آف لیٹر جو کہ کسی بھی ایک لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. اور یہ جو الفابیٹ ہوتے ہیں یہ لینگویج کی, کسی بھی لینگویج کا جو ہوتا ہے نا بیک بون ہوتے ہیں. کمنگ اب اس میں یہ کہ وائی از اٹ امپورٹینٹ ٹو نو دا الفابیٹ, کہ الفابیٹ لینگویج کو جب آپ نے بولنا ہے, سوری جب آپ لینگویج سیکھ رہے ہیں تو اس میں الفابیٹ کی کیا امپورٹینس ہے. الفابیٹ ورک ایز اے بیک بون آف اینی لینگویج. وداؤٹ پراپر الفابیٹس any language on earth cannot exist. کوئی بھی لینگویج جو ہے آپ کی الفابیٹس کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. یہ بیک بون ہے نا, آف کورس انہی کو آپ جب کمبائن کرتے ہیں, ان کی ساؤنڈ سیکھتے ہیں, اسی سے پھر آگے آپ کا ٹیکسٹ, ریڈنگ, رائٹنگ, جو بھی سارا آگے لینگویج سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے. الفابیٹ کنٹینس بوتھ ووولس اینڈ کانسوننٹس. واول اور کانسوننٹس جب لیٹر میں ہم آتے ہیں تو ان کو ہم علیحدہ علیحدہ اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں, بٹ ان الفابیٹ ان میں واولس بھی ہوتے ہیں اور الفابیٹ کانسوننٹس بھی ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, واول وہ ورڈ ہوتا ہے, انگلش اور اردو دونوں میں واول ہوتا ہے. اردو میں ان کو مصوتے کہا جاتا ہے, انگلش میں ان کو واولس کہا جاتا ہے. دیز آر انگلش میں 5 ہیں, A E I O and U, یہ 5 واولس ہیں. تو یہ ان کا واولس کی کیا ڈسٹنگوش ہے, وہ یہ ہے کہ when you utter these letter, جب آپ ان الفاظ کو بولتے ہیں تو your tongue doesn't touch آپ کے لپس کو, یا آپ کا جو اپر جا ہوتا ہے آپ کا ٹنگ, اس کو آپ ٹنگ کو ٹچ نہیں ہوتی کسی بھی آپ کے ماؤس میں اپر جا پہ یا لپس پہ. باقی جو کانسوننٹس ہیں, آپ کوئی بھی کانسوننٹ بولیں گے اس کے لیے آپ کی ٹنگ یا تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی ٹچ ہوتی ہے. ایک چیز دوسرا واول کا یہ ہوتا ہے کہ انگلش میں کوئی بھی جو ورڈ ہے وہ واول کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. A E I O and U, ان 5 لیٹرز کے بغیر کوئی بھی انگلش کا ورڈ نہیں ہوتا. بڑے کم ہوتے ہیں, کوئی آئی گیس کہ کوئی 1000 میں سے 2 ورڈ ہوں گے جن میں واول نہیں ہوتا. اب کوئی بھی ورڈ اٹھا کے لے لیں, ہم اسی کو جو الفابیٹ والا جو پیراگراف ہے اس کی فرسٹ 2 لائنز میں آپ دیکھ لیں. آپ کا الفابیٹ اس میں بھی 2 عدد واول ہے, ایک اے ایک ای. اس کے بعد ناٹ, مور, دین, گروپ, ہر ورڈ میں آپ کو واولز نظر آئیں گے. یہ واولز کی خصوصیت ہوتی ہے. Okay, alphabet contains both vowels and consonants, and to read and write a language, alphabets plays a vital role. کہ ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے جی لینگویج کو لکھنے میں, پڑھنے میں. Actually, language is all about reading and writing. First, English language was made up of Anglo-Saxon alphabets, but with the passage of time, missionaries introduced Latin alphabets to English language. یہ تھوڑا اس کا ہسٹری بتائی گئی ہے انگلش لینگویج کی, کہ آلریڈی لینگویجز جو ہوتا ہے نا دیٹ از کنسیڈرڈ کہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. اس میں بہت سے جیسے ہماری اردو لینگویج میں
فارسی کے عربی کے بہت سے وہ ہے حروف اور الفاظ ہیں، میں اسی طرح انگلش میں لیٹن کو لینگویج کو کہا جاتا ہے. اب آ جائیں اردو میں. الفابیٹ اسی طرح اردو الف تا یہ جو ہے اردو کے الفابیٹ ہے، اس میں واولس یا مسوتیں ہیں، الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ، ان کی آوازیں ہوتی ہیں. اگر آپ جو اردو کے حروف تہجی ہے، تمام حروف تہجی بے تا یا بچے کو ان 4 مسوتوں کے ساتھ لکھنا سکھا دے، یعنی کہ الف کے ساتھ اگر بے ہے اس کو الف کے ساتھ جوڑ کے لکھنا، اس کو یہ کے ساتھ چھوٹی یہ کے ساتھ جوڑ کے لکھنا، بڑی یہ کے ساتھ جوڑ کے لکھنا، اور اس کو واو کے ساتھ جوڑ کے ملا کے لکھنا، اگر آپ بچے کو سکھا دیں اور بڑا ہی آسان ہوتا ہے، تو آپ بچے کو 90% اردو رائٹنگ سکھا دیتے. اردو رائٹنگ ہمیشہ آلویز، اسپیشلی جو انگلش میڈیم اسکولس ہیں جیسے ہمارا سسٹم ہے، آلویز وی فیس اے پرابلم ان ہینڈلنگ ود اردو لینگویج. بچوں کو اس کو سکھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس کو بچوں کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ ہمیں پیرنٹس سے یہی آتی ہے کمپلین آتی ہے کہ جو انگلش تو بچہ کر رہا ہے، اردو نہیں کر پا رہا. حالانکہ ہماری اپنی مادری زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے، بول تو لیتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایون ہم لوگوں میں سے بھی ہم کتنی اچھی اردو بولتے ہیں یہ ہمیں خود بھی پتہ ہے، حالانکہ ہماری مادری زبان ہے. The reason is، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں کلیئر کروں کہ جب آپ اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس کے ساتھ چلتے ہیں نا، جو ریسرچ بیسڈ، اب اردو پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے اس لینگویج پہ، کس کو کس طرح سے بچوں کو سکھایا جائے. تو ہم دیر ہوگی ہے ہمیں ریسرچز کرنے میں، لیکن چلیں الحمدللہ، شکر اللہ کا ہو تو رہی ہے. تو ریسرچز ہو رہی ہے اردو پہ، تو ان ریسرچز کو بیس بنا کے جو ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز سکھائی جاتی ہیں، اگر ہم ان کے اکارڈنگلی بچوں کو سکھانا شروع کریں تو آپ یقین کریں اردو آپ کو لکھنے میں انگلش سے بہت زیادہ آسان لگے گی. اچھا، اس میں اب میں ایک چیز یہاں پہلے کلیئر کر دوں. ہمارے اردو لینگویج کا لکھنے بولنے میں ویک ہونے کا ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ وی گیو پریورٹی ٹو دا انگلش لینگویج. اب میری ورک شاپ بھی ٹوٹل 2 لینگویجز پہ بیس ہوتی ہے، انگلش لینگویج سکھاتے کے جو بھی ہوتے ہیں اور اردو لینگویج پہ بیس ہوتی ہے. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم یہ 2 لینگویجز اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں اپنے سسٹمز میں پاکستان میں. اگر کوئی تیسری لینگویج ہمارے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں ایڈ ہوتی تو ہم اس کو بھی کور اپ کرتے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ انگلش کو صرف ایز اے لینگویج لیجیے، اس کو اپنا وہ سپیریورٹی اور انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ ڈلیے، نہ خود ڈلیے نہ بچوں کو ڈالیے کہ آپ اس کو ایز اے لینگویج سیکھیں. اچھی بات ہے، آپ کو لینگویج سیکھنی چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو اردو اور اپنی جو آپ کی ہوتی ہے پروویژنل لینگویج، جیسے ہم پنجاب میں ہیں، ہماری پنجابی ہے، تو اس سے دور مت کیجیے اور ان کو وہ ضرور سکھائیے. ہم لوگ پنجابی جو ہیں، ہم وی فیل شیم ان اسپیکنگ پنجابی، ہمیں سانو یعنی کہ شرم آندی پنجابی بولن چ، لیکن انج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، ہماری زبان ہے اس طرح، تو یہ سکھانی چاہیے. ان شارٹ مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ انگلش اور اردو لینگویج پہ فوکس ہوتا ہے بیکاز کہ ہم یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن انگلش کو ایز اے لینگویج لیجیے، اس کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا وہ کرائٹیریا نہ بنائیے. یہ نہ بنائیے، یہ نہ سوچئے کہ if a one person can speak English, he is the only one who can get success. No, this is not like this. اردو زبان بھی ہماری بڑی پیاری زبان ہے، اس کو بھی آپ اتنا ہی فوکس دیجئے جتنا آپ انگلش کو دیتے ہیں. یہی چیز ہمارے اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں چونکہ فالو کی جاتی ہے، تو اسی لیے بچے اردو پہ ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے آ جاتے ہیں لیٹر کی طرف. In any language, letters are the building blocks. In English language, there are 26 letters, everybody knows, which starts from A to Z, and each of 26 letters have their own sounds which different. ہر انگلش لیٹر جو انگلش الفابیٹ ہیں اس میں 26 لیٹرز ہیں، ان کی ہر ایک کی اپنی ایک محسوس آواز ہے، اپنی ایک محسوس فارمیشن ہے، اسپیسیفک فارمیشن ہے، اسپیسیفک ساؤنڈ ہے جس کو ہم فونک کہتے ہیں. اور اسی طرح اردو میں آپ کو پتا ہے 36 ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان میں بھاری آوازیں بھی ایڈ کرتے ہیں، تو ان کی بھی اپنی ہی ایک خاص بناوٹ ہے، اپنا ایک خاص مقصد ہے، اپنی ایک خاص آواز ہے. یہ تو آ گیا جی آپ کا ڈفرینس بٹوین الفابیٹ اینڈ لیٹر. سو ان شاء اللہ آپ کو نیکسٹ آپ الفابیٹ اور لیٹر کو مکس نہیں کریں گی.
इस चीज को बताने का मकसद ये है, ये नेक्स्ट आगे जब आप कॉपी वर्क पे आते हैं ना बच्चों के, तो वहां पे टॉपिक एक्टिविटी में ये चीज बहुत मैसअप होती है, ठीक है। जब आप ए लिखवा रहे हैं तो आप लेटर लिखवा रही हैं, वो आप अल्फाबेट ए नहीं है, अल्फाबेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये अल्फाबेट है। और लेटर क्या है? ए, बी इज अ लेटर, सी इज अ लेटर, ठीक है। This was the difference between the Latin and the alphabet, which you never have to merge with each other, and it's need to tell to the children as well. Initial stages पे नहीं, लेकिन prep में जाके you can tell them the difference. आगे आते हैं जी हम letter recognition. Okay, what is a letter recognition? Okay. लेटर आइडेंटिफिकेशन और लेटर रिकग्निशन जो स्पेसिफिकली आज हमारा आज का टॉपिक है. What is letter identification? Letter identification is a skill that involves being able to say the names of both upper and lowercase letters of the alphabet without having to think and long about each and very long about each letter. अब identification क्या है? Letter identification ये है कि बच्चे के पास ये स्किल होनी चाहिए, किसी भी लेटर के नाम की उसकी पहचान होनी चाहिए. हर लेटर का एक नाम होता है और उसके बाद उसकी साउंड होती है. बोथ बोथ अपर केस कहते हैं, जो कैपिटल एबीसी जिसे हम कहते हैं, बड़ी हरूफ तहजीब जिसे पूरी इश्काल जिन्हें हम कहते हैं उसको अपर केस कहते हैं, और लोअर केस होता है जिसे हम स्मॉल अल्फाबेट कहते हैं या छोटी इश्काल कहते हैं, उन्हें लोअर केस कहा जाता है. अपर केस एंड लोअर केस मॉन्टेसरी टर्मिनोलॉजी में कैपिटल और स्मॉल का वर्ड यूज नहीं होता. कैपिटल के लिए अपर और स्मॉल के लिए लोअर केस वर्ड यूज होता है, और इसी तरह बड़ी इश्काल और छोटी इश्काल. जी, लेटर आइडेंटिफिकेशन ये है कि बच्चे को हर लेटर का नाम आता हो, चाहे वो अपर केस है या लोअर केस है, और उसके बाद उसकी जो है साउंड आती हो, और उसको किसी भी लेटर को जब उसके सामने आए एब्रप्टली विद इन सेकेंड वो उसको जो है ना रिकग्नाइज कर सके, उस लेटर को पहचान सके, और उसको ज्यादा बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े. दिस इज कॉल्ड लेटर रिकग्निशन. अब होता ये है, नॉर्मली मेरे पास ये बहुत इंक्वायरी आती है, तो अभी चूंकि मैं उसको साथ ही मैं इस चीज को क्लियर कर दूं. मेरे पास एक चीज की बहुत ज्यादा लेकिन इंक्वायरी आती है कि जब हम फोनिक्स टीच करें तो हम कौन से लेटर्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं. हम उसको स्मॉल लेटर अपर केस इंट्रोड्यूस करवाएं या लोअर केस इंट्रोड्यूस करवाएं. जी, इसका ये है कि जब हम फोनिक्स करवा रहे हैं तो हमें बच्चे को स्मॉल लेटर इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं, ठीक है. फोनिक्स जो है दैट इज अबाउट द साउंड्स ऑफ, आप उनको स्मॉल लेटर जो है उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर, आपका जो कोर्स बुक है यहाँ जो आपका जो सिलेबस है उसमें बुक्स में आपको अपर लेटर प्रोवाइड किया गया है, यानी अगर आपको कैपिटल एबीसी प्रोवाइड कर दी गई है बुक्स के ऊपर, तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप उसको बुक पे करवाएं. जैसे अपर केस है, वैसे तो प्रेप में जाके अपर केस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, प्ले ग्रुप नर्सरी में नहीं करवाया जाता. इसकी रीजन ये है कि आपका जो है ना ऑलमोस्ट 95% कंटेंट आप न्यूज़पेपर उठा लें, आप अपनी बुक्स उठा के देख लें, वो सब लोअर केस में लिखी गई होती है. अपर केस तो बस यूज होता है किसी सेंटेंस के बस स्टार्ट में यूज हो जाता है, या वेरी रेयर कोई आपको एक्सक्यूज मी प्रॉपर नाउन वगैरह यूज करना है या कोई स्पेशल कोई नाम हो तो उसके लिए आप अपर केस यूज करते हैं, वो बहुत कम यूज होता है. इसलिए ये रिकमेंड होता है कि आप उसको ना वो करवाएं, लोअर केस जो है ना उसको करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं साउंड के साथ. हाँ, और अगर आपकी बुक्स में अपर केस है तो उसका ये है सोल्यूशन कि आप उसको बुक पे वैसे करवाएं जैसे है,
अब आप आ जाएंगे बोर्ड एक्टिविटीज और आपकी जो फ्लैश कार्ड्स हैं या जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप उसको लोअर केस इंट्रोड्यूस करवा दें, साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। और बुक वर्क जैसे है वैसे करवाएं, आप उसको कॉपी पे जरूर साथ लोअर केस लेके चलें, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमें रीडिंग करवाने में बच्चों को। अब उसमें ऐसा है कि जब आप बच्चे को लेटर करवा रहे हैं तो उसको उसका नेम भी बताएं और उसकी साउंड भी बताएं। लाइक ए आपने जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको बताइए ए इज द नेम ऑफ अ लेटर एंड इट्स साउंड इज ए। थोड़ा स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में आप बच्चे को करवा सकते हैं। स्टोरी जो बच्चे हैं ना इनको अगर आप एक म्यूजिक और एक स्टोरी टेलिंग, इसके थ्रू ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक्स हैं। आगे इंशाल्लाह चल के एक्सक्यूज मी स्टोरी टेलिंग पे भी एक कंप्लीट सेशन होगा, आपको इस चीज का बताया जाएगा कि स्टोरी टेलिंग, व्हाट इज द स्टोरी टेलिंग और उसको उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एकेडमिक टीचिंग में। आप उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसको समझाएं कि देखें बेटा आप एनिमल्स को, एनिमल की एग्जांपल ले लें कि एक आपने कभी काओ देखे हैं? काओ का नाम, आप जानवर देखा उसका नाम है काओ और उसकी आपने कभी साउंड सुनी है? आप बच्चों को कहें चले काओ की साउंड निकालें, सारे बच्चे बोलना शुरू हो जाएंगे हाउ डू काओ की जो साउंड है, व्हाट इज साउंड ऑफ द काओ। इसी तरह डिफरेंट एनिमल की एग्जांपल ले लें कि व्हाट इज द साउंड ऑफ द, हाउ डू कैट स्पीक्स, कैट की क्या आवाज है, बच्चे बताएंगे। फिर आप उनको बताएं कि सेम लाइक दिस ए इज द नेम ऑफ अ लेटर एंड द साउंड ऑफ द ए इज ए। इससे फिर उनको जो है ना अपर केस और लोअर केस आप साथ लेके दोनों चल सकते हैं, उनको इससे इशू नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसमें है नेक्स्ट आपका आ रहा है, यह हमारा हो गया जी इंट्रो, व्हाट इज द recognition of introduction of the recognition and of the letter, importance of letters। अब आ जाते हैं हम, अल्फाबेट हो गया, उसके बाद लेटर हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द फोनिक्स। आई वुड रिकमेंड कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये हैंडआउट्स हैं, ठीक है, सब कुछ है, बट द वेरी बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज के आप इसको लिख लें। लाइक जो भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ या जैसा भी आप इसको जरूर लिखें। बेशक आप स्क्रीन से उसको देख रहे हैं, आप उसको रीड आउट कर रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको जरूर लिखें। जब आप लिखते हैं ना तो वो चीज आपको क्विकली आपके माइंड में एब्जॉर्ब भी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है। और उसके बाद आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगी व्हेन यू गो बैक टू योर होम, जब सेशन खत्म होता है तो आपका जो भी लिखा है ना, आप इसको एक दफा लाउडली रीड करें। रीड करने का ये फायदा होता है कि जब एट द सेम टाइम आप रीड कर रहे हैं और आपकी अपनी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, आपकी लिसनिंग भी हो रही है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन लिसनिंग एंड रीडिंग यू डू एट वन टाइम, तो मेमोरी स्किल्स जो है ना आपके बूस्टअप होते हैं। ये मेमोरी शार्प करने की एक्सरसाइजेज हैं। एक्चुअली मुझे बीच बीच में जो टिप्स नजर जहन में आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू द फोनिक्स। फोनिक्स सिस्टम का मैं थोड़ा सा आपको पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं। फोनिक्स का जो है ये लेटर्स की आवाजें होती हैं, ठीक है। अब क्यों जो है फोनिक्स क्यों हम करवाते हैं बच्चों, क्या रीजन है? हमने तो पढ़ते आ रहे हैं तो अभी सुनना शुरू हुए हैं, हमको कुछ चंद साल हुए हैं। फोनिक्स फोनिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने भी पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं जो है कामयाब हैं, हर कोई किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो अब फोनिक्स की क्या जरूरत हमें पेश आ गई है? मसला ये है कि अब हमें थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई इंग्लिश को लेके। अदरवाइज मैं आपको इस पे एक बड़ी आसान सी मिसाल के साथ फोनिक्स की इम्पोर्टेंस आपको बता देती हूँ, फिर हम उसको आगे उसको चलेंगे। इसकी पहले आपको मैं जरा डेफिनेशन बता दूं। चिल्ड्रन कैन यूज फोनिक्स नॉलेज टू साउंड आउट द वर्ड्स। वर्ड्स को साउंड आउट करने में उनको हेल्प होती है। दे कैन लर्न टू रिकग्नाइज हाउ साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड अल्फाबेटिकली। ये चीज उनको हेल्प आउट करती है कि जो है साउंड है, अल्फाबेट की साउंड कैसे रिप्रेजेंट करनी है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द लेटर साउंड्स एंड सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स एंड साइंस।
science. Phonics is essential for children to become successful readers, spellers, writers in the early years of schooling. ये बच्चों को बहुत हेल्पफुल करते हैं. आप वर्ब फॉनिक्स बच्चे को सिखा दें, आपका जो है ना इंग्लिश में 50% बच्चे को आपको स्पेलिंग लर्न ही नहीं करवानी पड़ेगी अगर आप उसको फोनिक मेथड के थ्रू करवा रहे हैं. बच्चों को जब आपकी बच्चा कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग 1 2 3 4 के बाद जब रीडिंग स्किल्स में आता है ना, राइटिंग स्किल्स में आता है जिसमें क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसमें प्रॉब्लम ही आ जाती है बच्चे को कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, वो ब्लेंड नहीं कर पाता स्पेलिंग साउंड्स को. अब फोनिक्स एक बड़ा वास्ट टॉपिक है. दैट इज नॉट ओनली अबाउट द साउंड्स ऑफ A to Z, that is not only about the sounds of alif ta ya. ये बड़ा वास्ट एक टॉपिक है. इट नीड्स कंप्लीट 3 days सेशन जिसको हम बाद में कैरी आउट भी करेंगे. बल्कि हमारा इधर फेसबुक पे लॉरेन होम स्कूल्स के वो चलता भी रहा था, फोनिक्स की क्लासेस भी चलती रही थी. तो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. अभी आज के लिए हम सिर्फ अल्फा लेटर साउंड्स करेंगे. अब ये है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फोनिक्स. फोनिक्स की जरूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. देखें जी, जो आपका लैंग्वेज है, मैंने कल भी आपसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका लैंग्वेज होता है ना, वो आपका होता है लैंग्वेज आपका जुमलों का मजमुआ है, जुमले आपके अल्फाज का मजमुआ है, अल्फाज आपके हरूफ का मजमुआ है. और हर्फ क्या है? हर्फ सिंबल, निशानात. जो ABC ये क्या है और अलिफ बे ये क्या है? एक सिंबल ही है ना, निशान ही है. हाली बे से तो कोई जुमला नहीं बनता. इनको हम मिलाते हैं मुख्तलिफ हरूफ के साथ तो लफ्ज बनता है, फिर जुमला बनता है. ये निशानात है, ये साइंस है. लैंग्वेज के सिंबल्स हैं, लैंग्वेज के साइंस हैं जिनकी आवाजें हैं. एंशियंट लैंग्वेज आप ये चले जाएं, आप अक्सर अगर आप में से किसी को आर्कियोलॉजिस्ट में आर्कियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि मेरा तो है बहुत इंटरेस्ट, मैं जरूर रीडिंग वगैरह करती रहती हूँ आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस पे. अगर आप चले जाएं, आपने अक्सर देखा होगा इजिप्ट, ये पिरामिड्स हैं, उसमें से अक्सर रिसर्च होती है जी, ये लैंग्वेजेस निकली हैं. वो क्या होता है? वो सिंबल्स होते हैं. आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने में जब इंसान ने जबान का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, जब उसको इतना शऊर और इतना वो उसने अपने डेवलपमेंट नहीं की थी, तो उस जमाने में इंसान आपस में कैसे कम्युनिकेट करता था? आवाजों के साथ. ठीक है जी, आवाजों के साथ कम्युनिकेट किया जाता था. आहिस्ता आहिस्ता जैसे दूसरे चीजों में, शोबों में इंसान ने तरक्की की, इसी तरह अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया, उसको अल्लाह ताला के दिए गए इल्म से की मदद से इंसान ने उन आवाजों को पहले तस्वीरों की शक्ल दे दी. मसलन अगर किसी को किसी जानवर के खतरे से बताना है या कोई जानवर का बताना है तो उसकी ना तस्वीर बना देते थे. आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने और आगे बढ़ते गए, उन्होंने उन तस्वीरों से हटके उन आवाजों को ये साइंस की शक्ल दे दी. ये जो आज एडवांस होते होते हमारे पास, ये जो आज के दौर में पहुंचे हुए हैं अल्फाबेट या हरूफ तहज्जी. अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अब देखें कि जब आप कुरान मजीद पढ़ाया जाता है तो आवाज़ों के साथ पढ़ाया जाता है. ठीक है, जो अरबी हरूफ तहज्जी आवाज़ों के साथ जो कारी साहब होते हैं, जो कारी हजरात होते हैं, वो बा, हमने खुद भी ऐसे पढ़ा हुआ है, कुरान मजीद आवाज़ों के साथ पढ़ाया जाता है. और क्या भी आपने नोट किया है कि 1 क्लास का बच्चा उर्दू रीडिंग करे ना करे, वो कुरान मजीद बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर देता है. 7 साल का बच्चा अगर आपने उसको 3 साल से एक एक्यूरेट प्रॉपर टाइम पे कुरान मजीद को पढ़ना सिखाना शुरू किया है तो 7 साल का बच्चा कुरान मजीद पढ़ लेता है. पहले सिपारे पे या दूसरे सिपारे पे होता है, पढ़ लेता है. लेकिन वही बच्चा जब उर्दू की क्लास में बैठा होता है, खुद भी रौनक्का हुआ होता है, टीचर को भी रौनक्का किया होता है, और इससे ज्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं जी बच्चे को उर्दू की रीडिंग नहीं आ रही, इंग्लिश की रीडिंग नहीं आ रही. दिस इज द रीजन बिहाइंड फोनिक्स. इसकी रीजन है आप उसको बच्चे को जब आप आवाजों के साथ करवा देते हैं ना तो उनको ब्लेंड करना बहुत आसान हो जाता है. जैसे आगे हम इसको एक्टिविटी भी करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने उसको हम यही पढ़ते आए हैं जी CAT कैट. जब CAT कैट, अब जब आप कैट वर्ड बोल रहे हैं उसमें सी का तो कहीं कोई ना नाम है ना कोई उसकी आवाज, सी की तो कोई आवाज ही हमारे कानों में नहीं पड़ी. जब हम कैट का वर्ड सुनते हैं तो की तो आवाज ही कोई कानों में नहीं पड़ी. हमारे तो कानों में पहली आवाज पड़ी है कैट, क की आवाज पड़ी है. तो लिहाजा जो सी है उसकी आवाज है ख.
हम बेहतर नहीं है कि बच्चे को उसकी आवाज सिखा दें। ख आगे फोनिक्स मैंने आपको बताया ना, एक वास्ट टॉपिक है। अब जैसे ख है, कुछ सूरतों में इसको सी भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो हमें प्री प्राइमरी बच्चों को सिखाने की और कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं एक आपके लिए से एक शेयर कर रही हूँ। जैसे ई आ जाता है, वाई आ जाता है या आई आ जाए, तो उससे पहले सी को सी ही पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन सर्कल, साइकिल एंड सेंटर, अदरवाइज सी की साउंड ख ही है। अब जब कहीं भी ख आना है तो बच्चे ने फौरन उसको ख पढ़ना है। अब आप उसको एक वर्ड दे दें जी, दे दें आप उसको कोई और वर्ड दे दें, कैप का वर्ड दे दें, अब वो साउंड करेगा, वो ये नहीं पढ़ेगा सी ए पी कैप, वो पढ़ेगा ख, ए की साउंड को पढ़ेगा ए, पी की साउंड को बोलेगा वो फ। तो ऑटोमेटिकली उसको पता है मैंने इन साउंड्स को जब मिलाना है तो ख एप कैप, ये वर्ड कैप बन गया। ठीक है, साउंड्स को वो ब्लेंड करना फिर वो बड़ा इजीली सीख जाते हैं। Research shows that when phonics is taught in structured way, starting with the easiest sounds and progressing through the most complex. This is a very important point, starting with the easiest sounds and progressing through the most complex. Today, we'll do the easiest sound, and step by step, we'll move forward to the most complex sounds and most complex phonics. It is the most effective way of teaching young children to read. Almost all children who receive good teaching of phonics will learn the skills they need to tackle new words. अब जब बच्चे को आपने फोनिक्स लैंग्वेज दे दी है ना, तो उसको अब उसके सामने अब जब नया वर्ड रखते हैं ना, तो उसको टैकल करने में बड़ा इजी होता है उसको। मैं चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है मॉन्टेसरी का ही है, और फोनिक्स जो है उनको बच्चों को करवाई उसी के साथ जाता है। मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह घर में लॉरल में ही पढ़े हैं, उनकी बेस वहीं से बनी है, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से उनकी बेस बनी हुई है, वहीं से पढ़े हैं। और अभी जो मेरे बच्चे जब 1 में आए थे ना, तो ये नहीं कि वही जो भी उनके साथ जो भी उनके क्लासमेट्स थे सब, या जिनको भी इस स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाया गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़पेपर को 50% रीड कर लेते थे 1 क्लास का बच्चा। एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। व्हेन यू विल कीप प्रैक्टिसिंग टीचिंग विद द फोनिक्स, यू विल आल्सो एक्सपीरियंस द सेम जो है स्टेटमेंट जो मैंने दिया, आप इसको भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो they can then go on to read and kind of text fluently, confidently and to read for enjoyment. ये सारी बात आ गया enjoyment वाली। यहाँ पे एंड पे जो उन्होंने enjoyment का वर्ड दिया ना, इसी के लिए हम सारे पापड़ बेलते थे, इस लाइन के लिए, टू रीड फॉर एंजॉयमेंट। इसी चीज के लिए हम ये सारे जो है ना इधर बैठे हुए हैं, और सारे जो रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं टू मेक रीडिंग फन एंड एंजॉयमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द चिल्ड्रन। उनको शौक हो, उनको क्यूरियोसिटी हो रीडिंग की, जो है ना रीडिंग की हैबिट अगर आप बच्चे में डेवलप कर देते हैं ना, तो वो आप उसकी बुनियादें बहुत मजबूत कर देते हैं। रीडिंग की हैबिट ये एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे ना फोनिक्स को लेके, वहां मैं आपको बताऊंगी। अभी तो हम सिर्फ ये एबीसी पे लगे ना, जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तब आपको मैं ये चीजें आप फील करेंगे कि वाकई फोनिक्स टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम इसको आते हैं इसको ये मैंने फोनिक्स की जो इम्पोर्टेंस है इसको हम देखेंगे। अब लैंग्वेज पिलर में आपको एक शॉर्ट सी एक लैंग्वेज पिलर है, एग्जांपल के लिए बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने बच्चे को सिखाना है, इसको नंबरिंग में देती हूँ। सबसे पहले आपने बच्चे को सिखानी है साउंड्स, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चे को सिखाना है लेटर राइटिंग, कि ये लेटर साउंड पहले आती है, उसके बाद आता है जी लेटर का नाम और उसकी रिकग्निशन, उसके बाद आ जाता है आपका वर्ड, वर्ड के बाद आ जाता है आपका सेंटेंसेस। जब वर्ड सिखाते हैं वो हम प्रेप में जाके सिखाते हैं, और फिर प्रेप में ही सेंटेंस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चे को हम 5 वर्ड 4 वर्ड लेटर का सेंटेंस सिखाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जाके आपको जब आप बच्चे को सेंटेंस बिल्डिंग करवा देते हैं, उसकी सेंटेंस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है,
फिर आप ऐसा ऐसा वंस एंड टूज में हम पैराग्राफ्स में आते हैं। तो जो बेस है ना इस सारे प्रोसीजर की वो यही चीज है, इम्पोर्टेंस आपका फोनिक्स और जो है आपका लेटर रिकग्निशन। नाउ इसमें आ जाए हम थोड़ा सा, मैं आपको ये स्लाइड आपके सामने आई होगी अल्फाबेट्स। इसमें हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम इसको थोड़ा ओरल सारा कर लेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो उसको आपने इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना है लेटर को बच्चों को, हम उसको लेके चलेंगे जी। अब यहाँ आपके सामने इंग्लिश अल्फाबेट, आपके आप देखे होंगे कि मैंने वही पैटर्न सेलेक्ट किया हुआ है जो हमने अपने लॉरल सिस्टम में बच्चों को जिस तरह से करवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल अपर केस एंड लोअर केस बोथ हमें इंट्रोड्यूस करवाना है। तो दिस इज द पैटर्न वी विल इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने वही जो है ना पैटर्न उसको सिलेक्ट किया। इसमें एक वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। इसमें यही फिर आ जाता है कि अभी सबसे पहले जो होता है ना, आपने बच्चे की LSRW, ये जो टर्म है इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, LSR&W, इसको कैपिटल में लिखिए, ये एब्रीविएशन है, ये मैं इसको आपको बताती हूँ कि ये किसकी एब्रीविएशन है। LSRW, L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing। हमें इसको इस सीक्वेंस से चलना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। दिस वुड बी द मेथड फॉर टीचिंग द लेटर रिकग्निशन। सबसे पहले अब हम प्रॉपर उसको सिर्फ लेटर पर उसको करेंगे और फोकस करेंगे कि हमें लेटर किस तरह से उसकी फोनिक्स किस तरह से करना है। पहले लिसनिंग करवाएंगे हम बच्चों को, ये जैसे A to Z है, इसकी पहले हम लिसनिंग करवाएंगे। इसी तरह अलिफ से ये तक हम आपको पहले बच्चे को हम उसकी लिसनिंग करवाएंगे, फिर हम आएंगे उसकी स्पीकिंग की तरफ कि उसको स्पीक कैसे करवाना है बच्चे को, फिर हम आएंगे उसकी रीडिंग की तरफ, और फिर हम उसको इस तरह से इस सीक्वेंस से हम जो है ना उसको चलेंगे। आ जाए जी, पहले इसके लिए बेस्ट वे होता है कि जो है आपका जो लिसनिंग है, इसके लिए अपना वीडियो और ऑडियो एड यूज करें। वीडियो ऑडियो एड यूज होती है जो आप उनको बच्चों को आजकल ये तो काफ़ी आसानी है, आप इसको यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पोइम्स होती हैं ABC से रिलेटेड होती हैं, आप पहले बच्चों को वो सुनाएं, लिसनिंग करवाएं बच्चों की, उसके बाद आप खुद उनके साथ वो चीज़ें सिंग करें, ठीक है। आप उनके साथ वो चीज़ें खुद सिंग करें और आप उनको वो चीज़ें जो है सिखाएं, और फिर उसके बाद आप आए स्पीकिंग की तरफ। लिसनिंग के लिए मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, एंड आई वांट कि आपको इसकी साउंड सारी जाएगी, बट आई वांट कि आप लोग ना सब इसको साथ इसके सिंगिंग करें, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली हर लेटर का उसको पढ़ेंगे। ये वो फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया है जो कि हमने अपने लॉरल होम स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना है, इसी पैटर्न से चलना है। लेटर ए है, इसी साथ लेटर का नाम भी है और साउंड भी है। ए साउंड्स ए फॉर एप्पल, B sounds B, B for ball, C sounds K, K for car, D sounds D, D for duck, E sounds F, F for eggplant, F sounds F for fire, G sounds G, G for goat, H sounds for hamburger, I sounds E, E for inch, J sounds J, J for jam, K sounds K for kite, L sounds L, L, L for lemon leaf, M sounds M, M sounds M, M for mitten,
N sounds for nest. O sounds off for oven. P sounds for pizza. Q sounds quack for quarter. Here, one things need to be noted down that Q is when it is written in the beginning, it is always will be followed by the U. इसको हमेशा U के साथ मिला के लिखा जाता है. अगर आप इसको beginning में लिख रहे हैं, U के साथ मिलाएंगे और इसकी sound क्वा होगी. और अगर आप इसको end में लिख रहे हैं, तो फिर ये Q ही लिखा जाएगा. R sounds rabbit. S sounds socks. T sounds turkey. Turkey is the name of a bird. U sounds umbrella. V sounds vest. W sounds watch. X sounds X-ray, and it is mostly written in the end, like in box, in fox, ox. But इसकी sound होती है XT होती है. Y sounds yo-yo. Z sounds zipper. So these are the letter sounds. ये letter sounds थी जो oral हमने बच्चों को करवानी है, तो हमने इस तरह से करवानी है. अब हम इसका एक दफा इसका आपको अभी मैं वीडियो ऑन करके इसका एक छोटा सा डेमो दिखा दूंगी कि हमने इसको किस तरह से बच्चों को, अगर हमने इसको करवाना है फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, तो हम इसको किस तरह से करवाएंगे. आई होप कि सबको ये क्लियर हो रहा होगा. उसमें अभी ये है कि आप जब बोर्ड पे करवाते हैं तो आप बच्चों को करवाते हैं 2D इफेक्ट से. वो सिर्फ बच्चों की एक बच्चा अपनी आंख यूज कर रहा है, उसकी सेंस ऑफ साइट यूज हो रही है और सेंस ऑफ हियरिंग यूज हो रही है और सिर्फ सुन रहा है आपकी आवाज को. एक चीज याद रखिए कि अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस हमें दी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड सेंस ऑफ टच. आपका बेसिक पर्पस जो मॉन्टेसरी सेक्शन में होता है, हमने इन सेंसेस को शार्प करना होता है. इन सेंसेस को जब आप शार्प करेंगे तो बच्चे का आईक्यू लेवल, आपको तो एक होता है, आपका बच्चे की सेंस ऑफ लर्निंग शार्प होती है. अगर आपने ये बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो कोशिश करें आप उसको 3 से 4 सेंसेस को यूटिलाइज करें. फॉर एग्जांपल, आप उसकी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्पीकिंग, सेंस ऑफ टच और स्मेल, इनमें से एटलीस्ट 3 से 4 सेंसेस का यूज करें. नाउ oral recognition of the letter A. Okay, children, today I am going to introduce a letter A. A letter, वही कैपिटल में आप A कहेंगे, ये बोर्ड के बाद. This is A. A. F for apple. F for apple. F for arrow. Apple, arrow. Apple, arrow. Okay, this is apple and this is arrow. The beginning sound of apple and arrow is A. 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 At a time, हमेशा 3 लेटर इंट्रोड्यूस करवाने हैं. Okay. This is K. 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 K for candle. K for candle. K for cup. K for cup. K for candle. Cup. Candle. Cup. Candle. Cup. And this is letter B. B sounds B.
B, B, B for baby. Look at this. B for baby. Baby. B for baby. B for book. This is a story book. B for book. B for ball. Ball. Book. Baby. Book. Baby. Ball. So these were the vocabulary. ये vocabulary थी B की. B for baby, B for ball, and B for book. जब आप vocabulary आपने देनी है, आपने ये चीज पॉइंट जहन में रखना कि तीनों चीजें इकट्ठी नहीं शो करनी. वन बाय वन. आपने देखा होगा मैं वन बाय वन यूज करती हूँ, और मैं ना मिनिएचर्स यूज करती हूँ. मिनिएचर होता है ये टॉयज या इस तरह की चीजें ना. ये देखिए कप, ओरिजिनल कप भी मैं ला सकती थी. ये बच्चों को ना बड़े अट्रैक्ट करते हैं. अब आप एक चीज इमेजिन करें, आपने सुबह लेटर इंट्रोड्यूस करवाना है और कोशिश किया करें बच्चों के आने से पहले अपनी ये चीजें सेट कर लें. आपने अब टेबल पे ये सब कुछ रखा हुआ है, तो आपका बच्चा जब मेंटर होगा क्लास में, ये देखिए इस तरह से आपकी टेबल सेटिंग पड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा क्यूरियस होगा कि पता नहीं टीचर हमें आज क्या करवाने जा रही हैं, क्या सिखाने जा रही हैं. तो इस तरह से बच्चा वैसे भी इन चीजों को लाइक करता है. अब ये थी आपके बच्चों की सेंस ऑफ साइट और हेयरिंग. अब आप इसके लिए उनकी सेंस ऑफ टच कैसे यूज कर सकते हैं. गिव दिस कप. अब फॉर एग्जांपल आप उसको करवाया. ख, ख फॉर हैंडल, ख फॉर कप. अब ये जो कप आपने पकड़ा हुआ है, ये आप सारे बच्चों को पास करें. ओके, I will give you this cup. Everybody, you will touch it and say the name. K for cup. You drink or take tea in the cup. K for cup. सबको पास करें. ठीक है, इसी तरह ये कैंडल आ गया. कोशिश करें ओरिजिनल कैंडल लाएं, लेकिन मैंने इसको ये टेक्सचर दिया हुआ, आप देख रहे होंगे, इसलिए दिया हुआ है कि बच्चा इसको फील कर सके. K for candle. K for candle. K for candle. ये आपका आ गया जी इंट्रोडक्शन. इसको आपने टीपीएल मेथड से ही करवाना है. टीपीएल मेथड आपको मैंने करवाया था कि 3 पीरियड लेसन, दिस इज, व्हाट इज एंड वेयर इज. अभी तक हम दिस इज हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया. अब हम आएंगे वेयर इज. यू विल, अभी चूंकि ऑनलाइन है, मुझे हाथ में चीजें पकड़नी पड़ रही हैं. प्रैक्टिकल हो तो टेबल पे हम रख के तो उसको करते हैं. ओके ओके चिल्ड्रन, टेल मी where is B. आप बोर्ड पे इनको पेस्ट कर देंगे. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बोर्ड पे भी आपने इनको कैसे पेस्ट करना है. Where is B? Call anyone. किसी बच्चे को बुलाएं. ओके, where is B? बच्चा खुद ही पॉइंट करेगा. पॉइंट आउट. ओके, दिस इज B. वेरी गुड. अब इनकी फ्लैश कार्ड की पोजीशन चेंज कर. अच्छा बेटा, फिर बताएं. Where is K? Where is D? इसी तरह आप 3 दफा बच्चे के साथ एक्सरसाइज रिपीट करें. Now you have done with where is. अब आ गया टाइम what is का. Okay, now you all will tell me what is this. बच्चे बोलेंगे, अब आपने नहीं बोलना, ये अब आपके बच्चे बोलेंगे. What is this? ये डेफिनेटली इतनी एक्सरसाइज के बाद आपके क्लास के 95% बच्चों को इसकी रिकग्निशन हो चुकी है. What is this? Okay, very good. F for apple. F for apple. F for arrow. इसी तरह से आप तीनों लेटर्स के साथ इसकी ये वोकैबुलरी रिपीट कर लें. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज B. B for, ये आपको बच्चे खुद ही बताएंगे. B for baby. B for ball. This is what we'll do
विद द ओरल रिकग्निशन। ये आपकी ओरल रिकग्निशन है, और इसके बाद आपने इसको बोर्ड पे किस तरह डिस्प्ले करना है वो भी मैं आपको अभी इसकी डिस्प्ले दिखा देती हूँ। अब इसमें ये चीज आ गई आपकी LS लिसनिंग होगी, इसकी बच्चे की स्पीकिंग होगी, रीडिंग ऑफ कोर्स वो साथ साथ चल रही थी फ्लैश कार्ड के थ्रू। अब आना है हमने राइटिंग पे, राइटिंग पे हमने सबसे एंड पे आना है। हम पीछे अभी तक जो 3 प्रोसीजर से लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, इसमें हमने बहुत टाइम दी है, बहुत फोकस की है। अब 2 डेज अगर शुरू में थोड़ा बच्चे टाइम लेते हैं, आगे जाके उनकी वैसे ही वो स्पीड अप हो जाते हैं, हमने उस पर बहुत टाइम दिया है। अब आपको टाइम देने का ये फायदा है कि जब आपने बच्चे को राइटिंग पे लाना है ना, उसको हम चूंकि उल्टा चलते हैं, हमारे जो सिस्टम है हम उसमें उल्टा चलते हैं। हम क्या करते हैं कि आती बच्चे को पेंसिल पकड़ा दी, आई होप कि सबको ट्रे नजर आ रही होगी कि चलो जी लिखो। ये गलत है। आपने पहले इसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग जब करवा दी, राइटिंग तो आपका काम ही नहीं बचा। राइटिंग तो बच्चा खुद वो खुद करेगा, लेकिन उससे पहले हम करेंगे प्री राइटिंग एक्टिविटीज। प्री राइटिंग एक्टिविटीज क्या है? वो एक तो ऑलरेडी मॉन्टेसरी किट जो आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसमें बहुत ज्यादा प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज हैं। अभी चूंकि पॉसिबल नहीं था उसको उसके थ्रू करवाना, तो मैंने ये एक दो थोड़ी सी एक्टिविटीज आपकी। दिस इज अ सैंड ट्रे, इसे कहते हैं सैंड। ये कुछ भी नहीं है, एक ट्रे है, इसमें मैंने थोड़ी सी सैंड रख ली। आई होप सबको ये विजन क्लियर होगा। अब प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज ये हैं, आपने अभी बच्चे को कॉपी या बुक पे नहीं लाना, उसकी पहले प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। वो ये क्या है? वो 1 मिनट जरा ये देखिए, मेरी हैंड की जो है ना वो उसको आप अपनी ये 2 फिंगर्स इस तरह जो है ना, अपने जब आप पेंसिल पकड़ते हैं, ये देखिए आप इन 3 फिंगर्स का यूज करते हैं। दिस वन इंडेक्स फिंगर, आपकी जो मिडल फिंगर है, और आपका जो थंब है। आप इन 3 जो फिंगर्स हैं इनका आप यूज करते हैं ड्यूरिंग व्हेन यू होल्ड द पेंसिल। अब ये 2 फिंगर्स आपकी देखा आपने बंद है। अब आपको पता है बच्चे को प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है, ये मसल डेवलपमेंट होती है, बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो पेंसिल पकड़ेगा, उसको उससे ये 2 फिंगर्स फोल्ड नहीं होंगी। ये 2 फिंगर्स ऐसे उससे फोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है बच्चे से। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि बच्चा राइटिंग गंदी करता है, उसकी ग्रिप नहीं आती। आप डॉट्स पे आप बेहतर नहीं है कि आप उससे पहले उसकी बुनियाद जिस चीज ने उसको हेल्प आउट करना है, उसके मसल ने, आप उसका पहले वो तैयार कर लें, बेहतर वो है। अब क्या है, अब आप ये मेरी फिंगर मूवमेंट देखिए, आपको नजर आ रहा है? ओके, ये देखिए, ये अब मेरी फिंगर मूवमेंट, इसको अगर मैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती हूँ तो ये आसान है। देखो मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, इसको मैं अप डाउन करना आसान है। लेकिन जब इसको मैं राइट और लेफ्ट करती हूँ, आप भी करके देखिए, इट्स ये थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। अप डाउन इज वेरी इजी, लेकिन राइट और लेफ्ट करने में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। इतनी इजीली नहीं हो रहा, मुझे अपना फोर्स एक्स्ट्रा थोड़ा अप डाउन की बजाय इधर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अब अप डाउन मूवमेंट क्या है? आपकी इंग्लिश की राइटिंग है, आपके जितने इंग्लिश अल्फाबेट हैं आप अप से डाउन आते हैं। ब, ख, ड, या आप अप डाउन आते हैं। उर्दू में आप तमाम हरूफ को राइट टू लेफ्ट लेके जाती है। ये वो पॉइंट है जिधर बच्चों को उर्दू लिखने में मुश्किल पेश आती है। मुश्किल कहाँ है? आपकी मेहनत में कोई शक नहीं है, आपकी स्ट्रेटजीज में कोई शक नहीं है। बच्चे का ये मसल डेवलपमेंट जो है ना बहुत जरूरी है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट वाला। ये मुश्किल आप खुद भी करके देखिए। प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज का मकसद ही ये है कि आप बच्चे के ये जो है मसल्स डेवलप करते हैं। अब उसमें क्या होता है, आपने जो भी एक्सरसाइज करवानी है बच्चे को, ये 3 फिंगर्स यूज करवानी है। ये प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज है। ये देखिए, अब हमने आज 3 लेटर्स किए हैं, मैं आपको जो है सिखाती हूँ कि आपने उसको प्री राइटिंग एक्सरसाइज क्या है। बिफोर टेकिंग देम फॉर राइटिंग, आप सैंड पेपर ये सैंड लीजिए, लुक एट दिस। दिस इज ए, ओके। दिस इज बी, b, b says b, kh, 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 okay.
Now, once do in front of them, then let the child to do it. अभी के लिए मैंने ट्रे भी छोटी दी थी क्योंकि ताकि आपको स्क्रीन में इजीली शो हो जाए. You can expand the tray or you can, the easy way is take them outside. सैंड पिट एक हम बनाते होते हैं स्कूल्स में, वो इसीलिए यही होता है कि बाउंड्री सी बना दी जाती है और उसके अंदर सैंड फेंक दी जाती है. तो बच्चे बड़े मजे से ना बैठ के आप इस पे रीडिंग भी करवा सकते हैं, वो आगे चल के उसका भी ये बड़े मजे की एक्टिविटी होती है. इससे बच्चे के ना ये जो सॉफ्ट होता है, ये देखेंगे बच्चे के मसल्स डेवलप हो गए. नो पास, अब बच्चे को आपने अपने पास बुलाना है और आपने उसके साथ ये जो है ना एक्सरसाइज आपने उसके साथ रिपीट करनी है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्री राइटिंग एक्सरसाइज. इसकी बहुत सी एक्सरसाइज मॉन्टेसरी किट में भी हैं, लेकिन ये इसीलिए इफेक्टिव मैंने ये शो किया कि इजीली इसमें इतना इशू नहीं था, क्योंकि अभी किट्स के साथ तो ट्रेनिंग इंशाल्लाह बाद में जब स्टार्ट होगी उसको हम देखेंगे. दिस वाज द प्री राइटिंग एक्सरसाइज. ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान में रहे, ये मैं आपको ये बड़ा पॉइंट है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज बच्चे से करवा रहे हैं, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एंड रूल फॉलोइंग, ये अब टीचर का काम है. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं है कि अगर सेंट्रल एक्टिविटी करवाई है तो पूरी क्लास में, या अगर आपने बाहर किसी भी ग्राउंड में करवाई है तो वो वहां पे रेत ही रेत बिखरी पड़ी है. दिस इज नॉट अ गुड थिंग. इसको मैनेज करना टीचर का काम है. उसको यही चीजें तो बच्चों को सिखाने वाली हैं, यही मैनरिज्म है, यही तरबियत है. ये पहले जो हम उसके ऊपर लेटर लिख रहे थे वो तालीम थी, और अब ये तरबियत ये है इसमें, इस एक्टिविटी में, कि बेटा यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, यू हैव टू लिसन टू योर टीचर क्वाइटली. बड़े प्यार से उनको समझाएं, आपने मेरी बात आराम से सुननी है. यहाँ पे इस एरिया को सैंड के साथ गंदा नहीं करना. ये सैंड रे आते ही ना बड़े बच्चों की कोशिश होगी मुठ्ठियां भर भर एक दूसरे के ऊपर फेंकने की. दिस इज वेयर उनकी तरबियत का प्रोसीजर शुरू होता है. ये वो चीज है कि चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करते. हमारी बड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर है, कुछ हो जाए हम पकड़ के चीजों को वो तोड़ फोड़ के वो फेंकते हैं. बड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर है, ये चीज बच्चों में से खत्म करनी है. बच्चों में अनसीन तरीके से कुछ ये कार्टून्स का कमाल है, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे बच्चे बड़े हाइपर होते जा रहे हैं. कुछ आपको पता आजकल फूड प्योर नहीं है, उस वजह से डिस्ट्रक्टिव नेचर बच्चे हैं, तो ये उनकी डिस्ट्रक्शन नेचर को ये चीज कंट्रोल करेगी इस एक्टिविटी से. या कोई भी जो एक्टिविटी है, तालीम और तरबियत साथ साथ चलती है. दीज वर द प्री राइटिंग एक्टिविटीज. फोनिक्स हमने इसके इंग्लिश अल्फाबेट के कर लिए हैं. नाउ विल मूव फॉरवर्ड कि अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि इसको आपने बोर्ड पे कैसे डिस्प्ले करना है. आपका बस ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा सबको. ये लॉरेल होम स्कूल सियालकोट कैंपस में था. प्ले ग्रुप में डेली सुबह टीचर ने आना है. 8:30 अगर बच्चों का टाइम है तो ऑफ कोर्स टीचर्स का टाइम 8:15 पे होता है. तो प्ले ग्रुप नर्सरी टीचर्स, अगर अभी भी लॉरेल होम सियालकोट कैंपस में कोई पुराना स्टाफ में से कोई होगा तो उनको पता है कि मैं उन्हें कहती थी कि मॉन्टेसरी टीचर्स का स्टाफ रूम में क्या काम है. वो तो सिर्फ अपनी क्लास के लिए बनी है, वहीं से आए वहीं से, क्योंकि आपका वैसे भी 12:30 ऑफ हो जाता है, बच्चों ने चले जाना होता है. तो हम जब वंस यू एंटर इनटू द स्कूल, आप जब 8:15 स्कूल या 8:30 स्कूल जब एंटर होते हैं ना, तो यू आर ऑन ड्यूटी. आप अपनी ड्यूटी पे हैं. आपने एक एक लम्हा, एक एक मिनट अपने बच्चों के लिए आपका वो वक्फ है. और ये सारे बोर्ड में आप देख लें फ्लैश कार्ड्स लगे हुए हैं, ये एक ही दफा आपको बनाने पड़ते हैं, इसमें कोई इतनी मेहनत है ही नहीं है. और बाकी आप देख रहे हैं टीचर ने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है. इस सारे बोर्ड को हार्डली 5 मिनट लगे हुए हैं प्रिपेयर होने में. और ऐसा बोर्ड हो, और टीचर्स और मैं तो मान ही नहीं सकती कि बच्चे की वोकैबुलरी ना हो या उसकी रिकग्निशन पुअर हो जाए. मैं तो मान ही नहीं सकती इस चीज को कि इस इतनी टीचर की अगर इस तरह की तैयारी, ये देखें उसकी, आप उसकी ना, ये मेरे पास एक टीचर थी, मैं उनका जरूर यहाँ नाम लेना करूंगी. वो शी वॉज अ वेरी कैपेबल टीचर. वो थी प्ले ग्रुप में थी, उसमें शो यू स्लाइड, वो मिस आगे कुछ हो गई है उनका. आप इनकी डिटेलिंग देखें, ये चेक करें. ये क फॉर कैट एंड कैटरपिलर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है. ऑ फॉर ऑक्टोपस एंड एप्पल उसका है. ए फॉर एलिगेटर एंड एप्पल, एल फॉर लायन एंड लैम्प. और ये जी से उसने देखे ग फॉर ग्लू एंड ग फॉर ग्लासेस.
ये वो टेप्स उसने ग्लासेस को बोर्ड के ऊपर स्टिक किया हुआ है। तो कितनी वो ये अट्रैक्टिव चीजें हैं बच्चों के लिए, तो यू ऑल कैन डू दैट। ये कोई मैं जो यहाँ आपको ये सारे टिप्स दे रही हूँ, मैं कोई सीखी सिखाई नहीं आई, मैंने भी ये चीजें सीखी हैं, बस थोड़ी सी एफर्ट आपको देनी पड़ती है एक्स्ट्रा। वही मैंने आपको बताया ना, व्हाइट बोर्ड और रेड पेन वाले टीचर से आपने थोड़ा बाहर आना है। इसमें ये देखिए कितनी क्रिएटिविटी है, और बच्चा इस तरह से जब 3D में उसको देखता है, तो मैं तो नहीं मान सकती कि उसको लेटर रिकग्निशन ना हो 3 से 3.5, यानी अर्लियर जब वो 3 साल का स्कूल में आता है तो फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स में उसको लेटर रिकग्निशन ना हो, मैं नहीं ये मान सकती। ठीक है जी, इसमें ये आपका सारा है वो है थोड़ा सा मैंने ना इसको एनिमेटेड फॉर्म में आपके लिए किया हुआ है। ये है आपका बोर्ड का लेआउट। जब आपने फ्लैश कार्ड्स लगाने हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, तो ये आपका बोर्ड का लेआउट है, सब्जेक्ट, टॉपिक, और इस तरह आप अपना होमवर्क जो होता है डेली बेसिस का, वो आप इधर साइड पे लिख दिया करें। यानी प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में तो एक टीचर मोस्टली रहती है, 1-2 में होते हैं कि आप इधर अपना ना होमवर्क, अगर उर्दू की पहला पीरियड उर्दू की टीचर का था, उसका होमवर्क यहाँ लिखा रहना चाहिए, मेंशन रहना चाहिए। नेक्स्ट टीचर जो भी आती है वो अपना होमवर्क यहाँ लिखे, यानी कि ऑल द डे डायरी आपकी यहाँ लिखी रहनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द टीचर एंड ऑफ द डे ये होता है कि अगर किसी बच्चे की को मिस भी हो गई है, तो वो अपनी कम से कम घर जाते हुए जो डायरी आपका शेयर डॉक्यूमेंट है वो आपका मिस नहीं होता। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे था हमारा उर्दू फोनिक्स आ जाए, हमने चूंकि इंग्लिश के कारण, अब ये है अलिफ, अलिफ से लेके ये तक है। ये अगेन वही मामला है कि क्या जब हमने फोनिक्स पढ़ाना है तो पूरी शक्ल में करवाना है या छोटी इश्काल में कराना है? जी, आपने जब फोनिक्स करवाना है आपने उसको छोटी इश्काल में करवाना है, और इसमें आपने साथ, चूंकि हमारे जो बुक सिलेबस है उसमें बड़ी इश्काल है, उसी तरह आप चलेंगे बुक पे, आप बड़ी इश्काल कैरी ऑन करेंगे जिस तरह से हैं कॉपी और बोर्ड पे और फ्लैश कार्ड्स पे, आप दोनों इश्काल का इंट्रोडक्शन देंगे। अब हम इनकी साउंड्स को करेंगे एक दफा। इनके लिए, इनके साथ मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, वो मैं आप सबको लिंक सेंड कर दूंगी इन सॉन्ग्स का इंशाल्लाह। हाँ जी, अलिफ की आवाज है आ से अनार, अलिफ मद आ की आवाज है आम। जब छोटी आवाज देनी हो तो अलिफ लगता है, तो जब थोड़ी आ की आवाज लंबी करनी हो जैसे आम, तो अलिफ के ऊपर मार डाली जाती है। बेसिकली ये इसका आगे आपको जब चलेगा वर्कशॉप प्रैक्टिकल चलेंगी तो उसमें आपको बताऊंगी अलिफ और अलिफ मदा में फर्क क्या है। बहरहाल ये है बे, बे की आवाज है ब, बकरी। ये है पे, पे की आवाज है प, पतंग। आगे है ते, ते की आवाज है त, तितली। ते, आगे आपने देखा इसमें टे है, टे, ते की आवाज है ट, टमाटर। से की आवाज है स, समर। से बहुत कम हरूफ शुरू होते हैं, ये समर है या एक उसको आप उसको दरमियान में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, या आखिर में जैसे मुसल्लस मुस्बत, इस तरह इसका दरमियान और आखिर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन बहरहाल हम जो है इसका साउंड जरूर देते हैं। उसके बाद है जीम, जीम की आवाज है ज, जूता, जग। उसके बाद है चे, चे की आवाज है च, चिड़िया। हे, हे की आवाज है हलवाई। हे की आवाज है खरगोश। दाल की आवाज है द, दाल, द, दवात। दाल की आवाज है ड, डुगडुगी या ड्रम। जाल की आवाज है ज, जहीरा। रे की आवाज है र,
रबर। रे की आवाज है रे, रे से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है, हमेशा एंड पे आता है, जैसे कि पहाड़। उसके बाद है जे की आवाज है जेवर। ये इसकी आवाज है जी, इसको यालाबारी बोला जाता है। इससे लफ्ज तो बहुत ही कोई वोकैबुलरी उर्दू में चुके नहीं है, तो इसको तो कंसीडर किया जाता है कि इसको मे बी क्या उर्दू हरूफ तहज्जुद से शायद स्किप कर दिया जाए। नॉर्मली जो है बुक्स हैं अब इस हरूफ को वो एंटर ही नहीं करते, वो अलिफ हरूफ तहज्जुद में से का कॉन्सेप्ट ही नहीं लिया जाता। बहरहाल हम फिर भी सिखा हम करवा देते हैं क्योंकि हमारी बुक्स में है। आगे है सीन। सीन की आवाज है से। शीन की आवाज है शेर। स्वाद स, स, साबुन। ज्वाद ज़ईफ। तोए तोता। जोए जरूर। आइन ऐनक। गाइन गुब्बारा। फे फवारा। काफ ये थोड़ा गले से कैंची। काफ कबूतर। गाफ ग गुलाब। लाम लट्टू। मीम मछली। नून नारंगी। वाओ। वाओ यहाँ पे शुरू में जब आ जाए तो इसकी आवाज है वर्क वर्दी। और जब इसकी आवाज ये जो कि मसबता भी है, तो जब इसकी आवाज आखिर पे आएगी तो इसकी आवाज हो जाएगी ओ। ओ मैं अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ चीज, अभी बच्चों को इनिशियली बताने की जरूरत नहीं है। वाओ की आवाज शुरू में और आखिर में अगर आ जाए तो ओ। इसी तरह हे की आवाज है हिरन। ये की आवाज है यक्का। आगे बढ़िए की आवाज भी ये है। अभी दोबारा ये छोटी ये और बड़ी ये भी मसवतें हैं, शुरू में आ जाए तो ये की आवाज है, और अगर आखिर में छोटी ये आ जाए तो ई की आवाज है, और अगर बड़ी ही आखिर में आ जाए तो ए की आवाज देना उसने। जैसे ब के साथ मिल जाए तो ब के साथ छोटी ये मिलाएं तो बी, बड़ी ये मिलाएं तो बे। आगे हैं जो ये भारी आवाजें हैं। भारी आवाजें क्या होता है, जिनके साथ हम दो चश्मी हे लगाते हैं। ये जो हे लगी होती है इसको लगाते हैं। ये इस वाली जो है ये वाली हे को, और ये बे जो हरूफे तजीज के साथ जब आप हे लगाते हैं तो ये भारी आवाज है। जैसे ध भेड़। आगे है फ फल। थ थाली। ठ ठ ठेला। झ झ झ झूला। छतरी। ध ध ध धोबी। ढ ढ ढ ढोल। ख ख ख खिड़की। घ घ घ घोड़ा। भारी आवाजों का तारुफ आपको दे दिया गया है, लेकिन ये आपने जाके करवानी है। बच्चों को प्ले ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं करवानी, इनमें थोड़ा मसल्स ज्यादा यूज होते हैं, बच्चों की अभी इतनी एफर्ट नहीं लगा सकते, उनके लिए आवाज निकालना बहुत मुश्किल होती है। इधर एक पॉइंट मैं आपसे क्लियर करती जाऊं कि जैसे उर्दू हरूफ तर्जीह में बहुत से अल्फाज हैं जिनकी आवाज सेम है। ये सबके ज़हन में सवाल आएगा कि से की आवाज भी स है, सीन की भी स है, और सवाद की भी स है। अब इधर बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अब उसे कैसे पता लगेगा कि साबुन सीन से लिखना है, से लिखना है कि स्वाद से लिखना है, और ये बच्चे गलती करते हैं। इसी तरह आप आ जाए और ये है
اور اس کے بعد ادھر جو آپ کا دوسرا وہ یہ والا ہے، یہ دونوں ہیں. اب بچے کو کیسے پتا لگے جی یہ ہرن جو ہے وہ اس والے ہے سے لکھنا ہے کہ اس والے ہے سے لکھنا ہے؟ ہاں، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اردو جو ہے اس میں آپ نے اس کو ان کی پہچان دینی ہوتی ہے، ان کی سائٹ ریڈنگ کروانی ہوتی ہے، یہ مشق ہوتی ہے. لکھائی کی مشق آپ نے ان کو جتنی زیادہ کروائیں گی، یہ جوڑ توڑ سے چیز، یہ جو کمی ہے، یہ اس چیز کی جو سینس ہے جوڑ توڑ سے آتی ہے، اور سب سے زیادہ آتی ہے ریڈنگ سے. جتنا بچہ ریڈنگ کرے گا اتنا اس کا الفاظوں کے ساتھ اس کا وہ رہے گا، تعلق رہے گا، اتنی اس کو الفاظوں کی پہچان ہوگی، اور اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جی یہ میں نے اگر سے کے اس کی آواز آ رہی ہے، سوا سے لکھنا ہے، سے لکھنا ہے، کہ سین سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ہے. یہ بھاری آوازوں کا کانسیپٹ آگے جا کے آپ پریپ میں دیتے ہیں. اب یہ ہے اردو کی حروف ہجائی. ان کے ساتھ میں آپ کو چھوٹا سا ٹپ دیتی جاؤں. انڈور کلاس میں جب آپ مثلاً کہ آپ بے کی ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں، بے پے تے، ان میں جو نقطوں والے حروف ہیں ان میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے بچوں کو، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے، نقطوں کو اکثر وہ مکس کر دیتے ہیں. اس کو آپ لیں اسٹوری ٹیلنگ میں. مثلاً بے ہے، اچھا بچوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، بے کی کہانی سناؤں گی. میں ویسے ایک اپنے سے ایک اینیمیٹڈ اسٹوری بنائی ہوئی، آپ کو مل جائیں گی، یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے، آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. بچوں کو اس کو بس ایک ان کو کہانی لفظ میں بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے. 3 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا بے، ایک کا نام تھا پے، اور ایک کا نام تھا تے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نقطوں سے نوازا ہوا تھا، ان کے پاس نقطے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس کم نقطے ہیں، کسی کے پاس زیادہ نقطے تھے، اور کسی کے پاس اس سے کم نقطے تھے. تو وہ تینوں بہنیں اکثر اپنے آپس میں لڑتی رہتی کہ تمہارے پاس ایک نقطہ ہے، اس کو طنز کرتی، اور کوئی کہتی تمہارے پاس تو جو جس کے پاس زیادہ نقطے تھے وہ کم نقطے والی کا مذاق اڑاتی، اور جس کے پاس کم نقطے تھے وہ بہن زیادہ نقطوں والی بہن کے نقطے چھیننے کی کوشش کرتی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کم نقطے تھے، کس کے پاس زیادہ تھے. جو بے بہن تھی اس کے پاس ایک نقطہ تھا، جو پے بہن تھی اس کے پاس 3 نقطے تھے، اور جو تے بہن تھی اس کے سر پہ 2 نقطے تھے. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ الف مد آ آیا، اس نے کہا ادھر آؤ بے پے اور تے، تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہی ہو؟ بے بولی دیکھیں الف مد آ، میرا یہ پے اور تے میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ تمہارے پاس بس ایک نقطہ ہے. الف مد آ کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا تے ادھر آؤ، پے تم بھی ادھر آؤ. اس نے ان دونوں کو، تینوں بہنوں کو پاس بلایا اور ان کو بڑے ہی پیار سے سمجھایا آپس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں، جس کو جو ملا ہے اس کا وہی اس کی قسمت میں ہے، تو جو جتنا ملا ہے اس پہ راضی رہو، نہ تو زیادہ ملنے پہ غرور کرو، اور نہ تھوڑا کسی کے پاس تھوڑا ہو تو اس کا مذاق اڑاؤ. بے پے اور تے کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. اب بے اپنے ایک نقطے پہ بہت خوش تھی، پے اپنے 3 نقطوں پہ بہت خوش تھی، اور تے اپنے 2 نقطوں پہ بہت خوش تھی، اور یہاں اس طرح وہ تینوں مل جل کے رہنے لگی. اس طرح سے اسٹوری آپ ان کو سنا سکتے ہیں. جو میں وائس کا پچ آپ لوگ کر رہی تھی، یہ اسٹوری ٹیلنگ کی ایک بہت ہے، ایک بیک بون ہے. جب ہم آگے اسٹوری ٹیلنگ کی ورک شاپ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گی. ابھی آپ میرے ایکسپریشنز نہیں دیکھ پا رہے، تو بچے تو ایسے گم ہوتے ہیں ان کہانیوں میں، اور اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ سکھانے کا مزہ آ جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ آپ ان اسٹریٹجیز سے چلتے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد اب ہم چلیں گے جی. یہ میں نے آپ کو ابھی تک ہم نے جو اس کو ایک تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں. ہم نے الفابیٹ اور لیٹر کا ڈفرینس دیکھا، ہم نے ان کی اسی طرح انگلش اور اردو جو حروف تہجی اور انگلش الفابیٹ ان کی ساؤنڈس کو ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو بورڈ پہ کس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے وہ ہم نے دیکھا. ہم نے ساؤنڈ اور لیٹر ریکگنیشن 3 پیریڈ لیسن کے ساتھ LSRW ٹیکنیک سے کیسے انٹروڈیوس کروانی ہے ہم نے وہ دیکھا. اب ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ جب آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے سارا آپ کا ہو گیا، سارا آپ کا لسننگ بھی ہوگی، بچے کی اسپیکنگ بھی ہوگی، ریڈنگ بھی ہوگی، رائٹنگ بھی ہوگی، تو آپ کے پاس
आपका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कि इन द एंड आपने क्या देखना है कि ये सब कुछ करवाने का आपके बच्चे को, आपका बच्चा कहाँ खड़ा होना चाहिए, वेयर शुड ही और शी स्टैंड, कि जब आपने ये बच्चे को सारी चीजें करवा दी हैं तो वो कहाँ पे उसका जो है ना वो स्टैंड करता हो। ये है जी, इसमें है आपके लर्निंग, आप कह लें कि आउटकम्स हैं, ये आपको इंशाल्लाह सारे हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। तो इसमें मैं आपको थोड़ा इसको कर देती हूँ। बेहतर होता है कि आप इनको साथ नोट करते जाया कीजिए, वो आपकी जरा आपकी ही एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द शेप एंड साइज ऑफ द लेटर, कि इन द एंड आपका जब बच्चा आपका उसी सूरत में आप उसको प्रॉपर लेटर रिकग्निशन देने में कामयाब हुए हैं, अगर वो ये 4 पॉइंट्स आप एंड पे उसमें आप उसको आपको नजर आते हैं कि उसकी काबिलियत क्या, उसकी काबिलियत है कि वो हरूफ को या लेटर को की शेप को और साइज को पहचान रहा है। शेप और साइज क्या है, शेप और साइज है अलाइनमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लेटर। फॉर्मेशन ऑफ लेटर क्या है कि जी बे को कहाँ से लिखना शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, कितने नुक्ते लगाने हैं, बी को कहाँ से लिखना शुरू करना है और कहाँ पे उसको खत्म करना है, और उसका किस तरह से उसकी फॉर्मेशन है, और उसको कौन सी लाइंस में लिखना है, ऊपर वाली 3 लाइंस में, नीचे वाली 3 लाइंस में, कि सेंटर वाली 2 लाइंस में, यानी क्या वो ग्रास लेटर है, रूट लेटर है या स्काई लेटर है, और क्या बच्चा वो उसको उसकी फॉर्मेशन ठीक बना रहा है, और क्या उसको अलाइनमेंट की सेंस है कि कितना मैंने लाइन से ऊपर लिखना है, कितना नीचे लिखना है। और साइज क्या है कि जैसे आप लिखते हैं बी लिखते हैं तो क्या वो जो उसका आगे कैसे बैली सी है वो उसको प्रॉपर बना रहा है कि बहुत उसको लार्ज कर रहा है, या उसको इतना छोटा कर रहा है कि वो लेजिबल ही नहीं है, पढ़े नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रही। ये चीज बड़ी ध्यान में रखने वाली है। लेटर फॉर्मेशन जो है आपकी बच्चे की प्ले ग्रुप से स्टार्ट होती है। अब ये ना सोचें, आप अक्सर ये चीज जो हम करते हैं बड़ी गलती करते हैं कि 1 बनाओ आगे हाफ सर्कल बना दो तो जी बी बन गया। नो, आपने बच्चे को ये गलत लेटर फॉर्मेशन नहीं सिखानी। जब आप प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस करवा लेंगी तो आपको बच्चे को बड़ा इजी लगेगा सही फॉर्मेशन पिक करने का। वो जो 1 बना के आगे आधा सर्कल बना के सिखाने वाला बी है ना, वो उसकी बच्चों के जोड़ों में बैठ जाता है, उसकी हड्डियों में बैठ जाता है और फॉरएवर उसको नुकसान देता है। किस तरह से आपकी जब आपकी लेटर फॉर्मेशन गलत होगी ना, आपकी राइटिंग स्पीड नहीं बन पाएगी। जब आपकी राइटिंग स्पीड नहीं बन पाएगी तब आप जब आगे जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे, आपको पता है 3 घंटे में कितना कितना लेंथी पेपर आपको सॉल्व करना पड़ता है। इवन आप जब मैट्रिक में है, बच्चे की टाइमिंग और वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेटर फॉर्मेशन इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे को ठीक लिखवाना। अब सिंपल प्रॉपर तरीके से बी लिखने में और 1 बना के आधा सर्कल बी लिखने में टाइमिंग का फर्क आता है। जो प्रॉपर फॉर्मेशन से है लेटर जल्दी लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जैसे जेड आप सिखाते हैं, एक लाइन ऐसे लगानी है, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। नो, उसको प्रॉपर फॉर्मेशन लिखाएं। आपकी बुक्स पे प्रॉपर एरो के साथ उन्होंने गाइड किया होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, मिडल पॉइंट कौन सी। ये आ गया जी आपकी लेटर की शेप और आपके लेटर का साइज। आगे आ जाता है जी लेटर नेमिंग। recognize that the shape of the letter is associated with the letter name, कि क्या बच्चा इस काबिल है कि वो उसकी आवाज को सही लेटर से कनेक्ट कर, बी की आवाज ब ही बोल रहा है कि कोई और दे रहा है आवाज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटर का नेम और साउंड की एसोसिएशन उसकी करेक्ट हो, जो वो नेम ले रहा है उसका साउंड वो सही दे। आगे जी लेटर साउंड नॉलेज, डिटर्मिनिंग व्हाट साउंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द शेप और नेम ऑफ द लेटर। वो ये क्या है, ये दोनों पॉइंट्स लिंक करते हैं डिटर्मिनिंग। फॉर एग्जांपल आपने बोला ख, कहीं सिर्फ आपने साउंड बोल लिया और उसको फौरन पता हो कि और वो लिखने के काबिल हो कि ख अगर टीचर ने बोला है इसको लिखना कैसे है, साउंड सुन के लेटर की शेप उसको बनानी है। ये जो एक्टिविटी हम करवाते हैं ना कि राइट द बिगनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर, कैप बनी होती है, नीचे ए भी लिखा होता है, सी मिस होता है, वो इसीलिए होता है। वो इस एक्टिविटी इस पॉइंट के लिए होती है कि बच्चा कैप की जब पिक्चर देखता है वो कहता है ये कैप है। कैप की पहली साउंड है ख, और अगर साउंड ख है इस साउंड का लेटर कौन सा है, वो इस काबिल हो गया आपका बच्चा कि आप साउंड बोल रहे हैं तो वो लेटर लिख रहा है। ये पॉइंट। चौथा पॉइंट लेटर राइटिंग, द एबिलिटी टू ट्रेस और राइट द लेटर विद अ पेन इन अकॉर्डेंस विद द शेप एंड डायरेक्शन। वो वही चीज आ गई है लेटर फॉर्मेशन के पेंसिल होल्ड वो कैसे कर रहा है। फिर मैं यहाँ कहूंगी
کہ یہی وہ وقت ہے 3 سال 4 سال بچے کو پینسل ہولڈ کرنا سکھا دیں. ٹیچر کی کبھی نظر ہونی چاہیے بچوں کے اوپر کہ بچہ جب رائٹنگ کرنے بیٹھا ہے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا رائٹنگ سٹنگ پوسچر کیا ہے, کیا وہ کمفرٹیبل بیٹھا ہے, گرمی ہے تو کیا وہ پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے, اس کو پراپر وہ ایزی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا رائٹنگ پوسچر کیا ہے, کیا ٹیبل سے بہت زیادہ دور تو نہیں ہے, بہت زیادہ وہ کنجسٹڈ ٹائپ تو نہیں بیٹھا ہوا. اس کے علاوہ اس نے پینسل کیسے ہولڈ کی ہوئی ہے. پینسل ہولڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ویسے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نارمل سسٹم میں سکھانا, لیکن جب آپ پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز اور مونٹیسری کٹ کے ساتھ آپ یہ چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں تو اتنی انجوائمنٹ ہوتی ہے نا آپ کو بھی. اب جب ہم آگے نیکسٹ انشاءاللہ ورک شاپ کریں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو بھی, مجھے تو آتا ہی ہے مزہ یہ کرنے میں, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز, اس کے ساتھ مونٹیسری ٹولز اور کٹس کے ساتھ. یہ 4-5 چیزیں بڑی مائنر چیزیں آپ کو لگ رہی ہوں گی کہ سائز اور شیپ کیا ہو گیا, لکھنا ہی ہے نا, بی لکھنا ہی ہے, زیڈ لکھنا ہی ہے, کے لکھنا ہی ہے, جدھر سے مرضی لائن لگاؤ, جدھر سے مرضی شروع کرو, ہینڈ کرو, کے تو لکھنا آ گیا. نہیں, یہ چیز نہیں سکھانی بچے کو. بے پے تے کا بڑا ایک عجیب سا نسخہ ہے کہ لائن کے اوپر 2 لائنز لگوائی جاتی ہیں گیپ سے چھوٹی چھوٹی, اور پھر کہا جاتا ہے ان لائنوں کو ملا دو تو بے بن گیا. نہیں, یہ فارمیشن غلط ہے, بالکل اس طرح نہ سکھائیے اس کو. بچے کو لیٹر ایکوریٹ فارمیشن میں نے 3 دفعہ کہا اس کے ساتھ سکھائیے. اور جو اس کا اورل ورک ہے with the accurate pronunciation. It's a cat. It's not a cat. Okay, it's a oven. It's not oven. It's apple. It's not جی apple. جی السلام علیکم ٹھیک میم. ہے یہ چیز. السلام علیکم میم, جی جی سوری ٹو جی انٹرپٹ جی. یو, کائنڈلی تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں سیشن کو, ہاں ہاں کیونکہ میں نے. جمعے کا ٹائم بھی آنے والا اوکے ہے جی. اوکے پونے 1 ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, چلے جی کوشچن بھی ٹھیک ہے لینے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جی تھینک تھوڑا ٹائم کا بھی ٹھیک ہے سر. اچھا بس ایک یہ لاسٹ چیز میں آپ سے بتا دوں, یہ لیٹر سیکوینس ہے. جی 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 اس کو ابھی ہم بتا دیں. بس یہ لاسٹ چیز ہے جی. یہ کیا ہے جی, لیٹر سیکوینس ہے. لیٹر سیکوینس کیا ہے, ابھی آپ کے ہمارے پاس جو لورل ہوم بکس ہیں ان پہ اس طرح سے A to Z ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ چونکہ لیٹسٹ ریسرچ ہے تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں. دس از اے لیٹر سیکوینس فرام ایزیسٹ ٹو ڈیفیکلٹ. یہ جو لیٹر ایزی ہوتے ہیں لکھنے میں یہ بچوں کو پہلے سکھائے جاتے ہیں. جو لیٹسٹ ریسرچ بیسڈ بکس آ رہی ہیں ان میں یہ سیکوینس ہوتا ہے لیٹر کا, SATIPNCKEHR. اس لیے سیکوینس ہے کہ یہ لیٹرز جو ہے نا ان کی فارمیشن ایزی ہوتی ہے. جب بچہ ایزی سے ہارڈ کی مشکل کی طرف جائے تو وہ جلدی پک کرتا ہے, آپ کی بھی ایفرٹ کم ہوتی ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیٹر ہنٹ ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چٹس پہ لیٹر لکھ لیجئے اور گراؤنڈ میں لے جائیے, کلاس میں رکھیے, وہ ان چٹس کو 2 4 5 جگہوں پہ ہائڈ کر دیجیے اور بچوں کو کہیے کہ جائیے اور لیٹر ڈھونڈ کے لائیے. میں نے یہاں تھوڑا ان کو ہنٹ دے دی, لیٹر چھپائے ہوئے ہیں, بچہ لیٹر لے کے آئے گا اور اس سے کہیں کہ آپ چٹ کھول کے لیٹر ریڈ آؤٹ کرو کہ تم نے کون سا لیٹر ہنٹ کیا ہے. ہنٹ کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا, لائک لیٹر ہنٹ ہے. اس کے بعد ہے لیٹر ساکر. لیٹر ساکر کیا ہے, ٹیک دا چائلڈ انٹو دا گراؤنڈ, چاک منگوا لیجیے, فلور گراؤنڈ پہ, زمین پہ, وال پہ لیٹرز لکھ دیجیے ڈسٹینس کے ساتھ. بچے کو فٹ بال دے دیجیے اور اس سے کہیے کہ ناؤ یو ہیو ٹو گول کرنا ہے آپ نے لیٹر سی پہ یا لیٹر ڈی پہ یا اے پہ یا ب پہ, اور بچہ اس بال کو کک کرے گا, کوشش کرے کہ اس لیٹر پہ لگے. ایکوریٹ تو نہیں لگے گی لیکن آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں نے کہا ہے کہ گول کرو سی پہ, تو بچہ کا سی کی طرف بال کو کرتا ہے, پش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیز آر دا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز. ان شاء اللہ جب نارملائز حالات ہوں گے یہ ہم پریکٹیکلی کیا کریں گے, کیونکہ آئی بلیو ان دا پریکٹیکل. تھیوریٹیکل تو بس شاید آج میں نے بھی جو ہے شاید وہ ایک بات ہے نا کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں نے پڑھ کے اتنا نہیں سیکھا جتنا پڑھا کے سیکھا, کیونکہ پڑھا کے سکھانے میں آپ کا پریکٹیکل بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ تھی آؤٹ ڈور گیمس تھی, یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ وہ تو ٹائم کا بھی تھوڑا شارٹیج ہے, اور وہ ہم جب پریکٹیکل کریں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے جائیں گے. ہاں جی, اب ہم آتے ہیں جی کوشچن آنسر سیشن کی طرف. اگر کسی پارٹیسپینٹ کو کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے, کوئی ہے تو آپ پلیز. ہاں جی, ہم ویٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے.
السلام علیکم. میں بات کر رہی ہوں. جی مدیحہ. میم آپ نے کہا کہ جی جی میم جیسے آپ نے کہا کہ فونکس پڑھاتے ہوئے ہم نے کھ ایپ کھیپ بولنا ہے, اور اگر یہی ہم اسپیلنگ انگلش میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو, مطلب پریپ کلاس میں بچوں کو اگر مطلب کھیپ ورڈ پڑھانا ہے تو کیسے میں ہم آپ کو اسپیلنگ بتاتی پڑھائیں؟ ہوں, یہ جو ہے نا یہ 3 لیٹر ورڈ ریڈنگ ہے, یہ آپ نے دیکھا آپ کے سیشن میں, اس کو بھی کل کی جو نیکسٹ تھرسڈے ہے وہ اسی پہ ہے. آج صرف لیٹر ریکگنیشن ہے کیونکہ ٹائم شارٹ جی ہوتا ہے, جی تو پھر یہ صرف ہے جو آپ کے جو پوائنٹس آپ نے مجھے سینڈ کیے تھے وہ میں نے لکھے ہیں ڈائری پہ, وہ ان کو ضرور میں انکوائر کروں گی. جو 2-3 پوائنٹس تھے وہ آج آپ کے انکوائر ہو گئے ہیں, آپ کا آج وہ سرو کر آپ کو جو 2-3 آپ کے کوسچن تھے کہ کیا فونک کس کا پڑھانا ہے, ساؤنڈ اور لیٹر کو کس طرح انٹروڈیوس کرانا ہے. باقی جو آپ کا کیپ اور بیٹ والا ہے فونکس کی جو پکچرز آپ نے بھیجی ہوئی ہیں وہ بھی ضرور یہاں ڈسپلے کر کے کروا دوں گی, ٹھیک ہے. اوکے میم, اوکے میم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی اور جی کوئی اور پرسن سوال کرنا چاہتے ہیں اور کوئی, تو اپنا اسکول کا نام بتا کے سوال کر سکتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ پوچھیں. یہ ایک ہے ٹیچر ہے سیالکوٹ کیمپس کی جو النور کیمپس ہے, وہ تو ماشاءاللہ اتنے وہ کوسچن بھیجتے ہیں جو ایسا ہوتا ہے نا پارٹیسپینٹ, تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے پارٹیسپینٹ جو میرا دن رات مجھے بس سوال پوچھ کے کام کرتے رہے. وہ پارٹیسپینٹ مجھے اور ایسے پارٹیسپینٹ کو سکھانے میں کبھی بڑا مزہ آتا ہے. تو پلیز کوسچن انکوائر کیا کریں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بالکل کانسیپٹ کلیئر ہو ہیلو, جاتا ہے. اس وقت کامرا والے اسکول کیمپس یا مشاہرہ ورکا والے کشمیر کے کیمپسز موجود ہیں, دیگر کیمپسز بھی موجود ہیں, تو آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ فلیگ شپ کیمپس بھی موجود ہے, تو آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے سوال کر سکتے ہیں. ہیلو, جی یہ محمد جی میم, میرے خیال سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم لیکچر جو ہے وہ بہت اچھا تھا, بہت بینیفیشری تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ابھی ہم پریکٹیکل ورک میں نہیں ہیں, بچوں کو ہم اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں, وہ ہماری اسٹارٹنگ ہے, ہمیں بہت ساری کیوریز ہوں گی جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کریں گے, تو کیا تب بھی آپ ہمیں ایسی ہیلپ آؤٹ کریں گی ہماری کیوریز میں؟ دیکھیں میرا تو کام ہی تب شروع ہوگا. ابھی تو یہ ہیڈ آفس والوں کی بڑی مہربانی ہے کہ دن رات محنت کرتے ہیں. میں رات کے 3 بجے بھی فون کروں تو وہ تو ایسے شخص ہوتے ہی نہیں ہے, جاگ رہے ہوتے ہیں. ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے ہمیں یہ سیٹ اپ کر کے دے دیا ہے. تو میرا تو کام بیسیکلی ہمارا شروع ہی تب ہوگا کہ جب آپ کا, ابھی تو میں بیٹھ کے لیکچر دے رہی ہوں, پاس بچے نہیں ہیں. کام شروع جی ہی تب میم, ہوگا جب میں بچوں کے ساتھ ہم پریکٹیکل کریں گے. یہ سب بیٹھ کے جی لیکچر دینا تو نہیں. ہر ایک کلاس میں 20 بچے ہیں, آپ کو 20 سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے. ٹھیک جی ہے, میم, آپ بے کو شک. 20 مختلف گھروں سے آئے ہوئے بچوں کو 20 مختلف ماحولوں کے بچوں سے ہینڈل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے. تو جی میم, انشاءاللہ میں پریکٹیکل میں ہیں ہی یہ چیزیں, کہ صرف زبانی کلامی ہینڈ آؤٹ دے کے تھیوریٹیکل پہ کام ختم نہیں ہوگا. پریکٹیکل ہے ہی وہ سب کچھ. ٹھیک ہے آپ کے ہر میم. ضرور اسٹارٹ ہوگا, ہوپ فار دا بیسٹ. ہم ضرور چاہیں گے آپ ہمارے اسکول وزٹ کریں, ایک دفعہ ہم اس سے ڈیل کریں ہمارے پری سیشن کی ٹیچرز کے ساتھ. جس طریقے سے آپ بچوں کو ڈیل کرتی ہیں, دیٹ واز جسٹ آسم. میں نے نہیں انشاءاللہ دیکھا کبھی انشاءاللہ کسی کو زیادہ بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے. جی جی چلیں انشاءاللہ. یہ ایک چائلڈ ڈیولپمنٹ ایکچولی ایک ہوتا ہے, چائلڈ سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو پورا سبجیکٹ تو پڑھانا پاسبل نہیں ہے, اس کو میں نے سمرائز کر کے اس پہ بھی ایک ورک شاپ ہم ضرور کریں گے. لیکن وہ بیسیکلی ہوتا ہی 80% پریکٹیکل ہے. وہ میں آپ کی ٹیچرس کو سکھاؤں گی کہ بچے کو ایک ویک آپ آبزرو کریں, آپ کی 80% چائلڈ سائیکالوجی آپ بچے کی جان جائیں گے, اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو ٹھیک انشاءاللہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ایزیلی. ہے میم, تھینک یو میم, تھینک یو. اللہ تھینک یو سو حافظ. مچ. اللہ حافظ.